Hello guys, welcome back to my channel English with Seema Miklani. As per the announcements, we have started with class 11 syllabus now. So we have started with the first poem from the book Hornbill. So first poem name is a photograph. As you can see on the board, the text is written behind you. And see, the poem is written by Shirley Towson. Shirley Towson, let's discuss about her even first of all. Shirley Towson was a British writer, poet, and she was an author as well as poetess, and moreover she was an editor as well. So now let's go further for the poem. Before starting the poem, let's discuss some of the things there. Here the poet is feeling nostalgia. Now what is nostalgia? Nostalgia means like the poetess was feeling like she was watching one of the photograph where her mother along with her two cousins were there in the photograph, and she was watching that photograph and some of the ideas came in her mind and she wrote down, penned down in the form of the poem, right? So no, now mother is no more and she was feeling nostalgia by watching the photograph, and the photograph the mother was very happy, and but now the poetess whose mother is no more, she was feeling grief. Now see what is there in the poem. So see the first line in the poem. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling. Now two cousins were there and she went paddling. Paddling means shallow water is there and she was going barefooted in the water, and that is called paddling. Right. Now third line is each one holding one of my mother's hand. दोनों cousins ने mother का hand पकड़ा हुआ था. In the photograph, it was talking about the photograph. And she was the big girl, some 12 years or so. अब जो big girl है, that is her mother, and she was nearly 12 years old, right? Now see, she was 12 years old and here the poetess called her big girl. See the irony here. And three stood still to smile through their hair. और जो वो तीनों लड़कियां थी, उनके जो हेयर हैं, क्योंकि वो बीच पर थी और उनके जो हेयर है वो विंड की वजह से, हवा की वजह से हिल रहे थे और वो अपनी हेयर जो उनके आगे फेस पर आ रहे थे, बट शी वाज स्माइलिंग. देन द पिक्चर वाज क्लिक्ड बाय द अंकल. नाउ सी एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो है वो कैमरा लेकर खड़े थे एंड शी वाज लुकिंग एट द कैमरा which uncle was holding in his hand, and the photo was clicked. So a sweet face, my mother's that was before I was born. अब ये कब की बात बता रहे हैं? When mother was 12 years old. Absolutely, poetess was not there at the age of mother at 12 years, and she was unmarried. She was a girl actually. Then and the sea which appears to have changed less. अब जो sea है, जो यहाँ पे सी है, जो अभी भी बीच वहीं पर है, बट देयर आर सम चेंजेस इन पोइटस लाइफ. पोइट की लाइफ में क्या क्या चेंज हुए और पोइट की मदर की लाइफ में क्या क्या चेंज हुए. मदर जो थी वो क्या थी उस समय? 12 इयर्स की थी. शी वॉज अनमैरिड, इवन शी वॉज वेरी हैप्पी. और लेकिन अब की सिचुएशन देखें तो अब क्या है? शी इज नो मोर. एंड मोर ओवर कि जो उसकी गर्ल है, जो उसकी बेटी है, वो क्या है, क्या फील कर रही है? मदर की फोटोग्राफ को देखकर मदर की हैप्पीनेस को देख रही है फोटोग्राफ में, बट शी वॉज नॉट मोर, दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग ग्रीफ. तो अब देखो, सी तो वहीं का वही है, सी तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन सिनारियो कंप्लीटली चेंज हो गया है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव लेस चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आती है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब देखो, अब वो जो सी का जो वाटर है, वो बार बार पानी जो है वो आ रहा है उनके फीट की तरफ, उनके पैरों की तरफ, और वो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है टेम्परेरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सी के किनारे पर अगर हम हमारे पैरों की फुटप्रिंट्स जो है वहां पड़ते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही पानी की वेव्स वहां आती है और वो उसको क्लियर कर देती है. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला? टेम्परेरी. तो टेम्परेरी फीट मतलब कि द फीट मार्क्स वर नॉट परमानेंट, they were temporary. And wash their terribly, मतलब किसने वॉश किया उनके हैंड के फीट को? सी ने वॉश किया. अब सी तो वॉश नहीं कर सकता, इसलिए पोइट ने यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन.
क्योंकि वॉश करने का काम ह्यूमन बीइंग का है, बट हेयर द वर्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज बीइंग डन बाय सम ऑफ द थिंग दैट इज सी। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, पोएटिक डिवाइस। अब पूरे फर्स्ट स्टेंजा में और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं साथ साथ कर लेते हैं। Here see, stood still, smile. Repetition of S. So this means there is alliteration, right? और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या है, क्या यूज हुआ है, यही राइट, पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ देखो देयर, टेरिबली ट्रांसिएंट, यहाँ पर भी फिर से alliteration यूज हुआ है। ठीक है, आई होप फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर। अब देखो सेकेंड स्टेंजा में आते। Some 20-30 years later, अब वो फोटोग्राफ को कब देख रही है, 20-30 साल के बाद। ठीक है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो फोटोग्राफ को देखकर हंस रही है। क्या कह रही है, उसकी मदर कह रही थी जब उसकी बेटी छोटी थी तब बता रही थी वो, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड हाउ आर दे। अब वो क्या कह रही है कि बेटी और डॉली जो उसकी कजिन्स थी, उसकी मदर ने उससे बात की थी उस फोटोग्राफ को देखकर व्हेन शी वाज अलाइव। तो वो क्या बता रही है उनको, कह रही है कि बेटी और डॉली को देखो दोनों फोटोग्राफ में क्या कर रही हैं। दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, उन्होंने अपना ड्रेस जो है ड्रेसअप कर लिया था अकॉर्डिंग टू द बीच एंड द सी हॉलीडे, बिकॉज वहां पर सी हॉलीडे था। मतलब अंकल के साथ वो कहाँ जाने वाली थी, तीनों के तीनों सी हॉलीडे के लिए जा रही थी, बीच पर जा रही थी। वॉश had passed mine in her laughter, both worry with the labored ease of loss। लेकिन अभी क्या है उनके लिए, लेबर्ड ईज। देखो यहाँ पर लेबर्ड और ईज दोनों वर्ड के बीच में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, गेस कर सकते हो। लेबर्ड ईज मतलब ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होती है, जहां पर दो ऐसे वर्ड्स आ जाएं, दो कॉन्टिन्यूस ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिनके बीच में कैसा है, अपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है, एक जगह हम कह रहे हैं लेबर्ड, एक जगह हम कह रहे हैं ईज, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरन। मतलब अब शी वाज फीलिंग कि उस वहां बीच पर पहुंच गई है और देखो उनकी जो उनकी स्माइल है, जो उनकी हैप्पीनेस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों की दोनों बहुत वेरी फील कर रही हैं। बहुत ही वेरी का मतलब होता है थकावट, टायर्ड फील कर रही हैं। बट स्टिल दे वर फीलिंग टायर्ड, इवन दे वर लाफिंग, दे वर सो मच हैप्पी। Both worry with the labored ease of loss. Now who are both here? Both means we are talking about the poetess and her mother. They both were bearing the labored ease. Now what is the meaning of labored ease? Labored ease मतलब painful और forced effort। मतलब labored का मीनिंग होता है painful, जो हमें पेन देती है, ऐसा effort जो हमें पेन दे। और ease का मीनिंग है to accept। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था, लॉस को एक्सेप्ट कर लिया था उसने। कौन से लॉस को, कि उसकी मदर इज नो मोर नाउ, तो ये लॉस उसके लिए था। और यही उसकी मदर ने क्या लॉस एक्सेप्ट कर लिया था, कि उसका अनमैरिड जो टाइम था दैट वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। और अब लेकिन उसकी जो बेटी थी उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, कि मदर इज नो मोर, राइट। तो दोनों के लिए लेबर्ड ईज थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर्ड ईज मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, कि दोनों ने एक्सेप्ट अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी लॉस को, अपने लव्ड वंस के जाने को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, लास्ट स्टेंजा है पोएम का। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब जब वो फोटोग्राफ देख रही है, नॉस्टैल्जिया फील कर रही है, तब बहुत टाइम हो गया उसकी मदर की डेथ हुए को। और एज दैट गर्ल लिव्ड, लेकिन वो गर्ल अभी भी जिंदा है। And of this circumstances there is nothing to say at all। अब इस circumstances पर, इस situation पर at present she was not having anything to say। अब उसके पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब क्या है, सिर्फ silences। ओके, silences अगेन S alliteration। और यहाँ साइलेंस को साइलेंस होने के लिए कह रहे हैं, तो साइलेंस क्या है, कोई पर्सन तो नहीं है। तो अगेन यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एलिट्रेशन के साथ साथ पर्सोनिफिकेशन। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू एंड दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द exam purpose। And now we will meet you soon with the next video and with the next chapter. Till then, bye bye.